میں ہوں سعید تجمل قادری۔ پہلے ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور دیگر سرکردہ لیڈران کا سابق وزیر اعظم آجانی ڈاکٹر منموہن سنگھ کو شاندار خراج عقیدت پیش۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر، وزیر اعلیٰ اور دیگر لیڈران کی طرف سے بھی تعزیتی پیغامات جاری۔ سابق وزیر اعظم کے انتقال پر حکومت نے 7 دن کے قومی سوگ کا کیا اعلان۔ آجانی لیڈر کی آخری رسومات کل۔ عوامی شکایات کو دور کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل۔ لوگوں کو درپیش مسائل سے نجات دلانے کے لیے متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایات جاری۔ وزیر اعلیٰ۔ اور وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں آج بعد دوپہر برفباری کا سلسلہ ہوا شروع۔ ناسازگار موسمی حالات کے بیچ بجلی، پانی اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ چوکس۔ اب ان خبروں کی تفصیلات۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق وزیر اعظم آجانی ڈاکٹر منموہن سنگھ کو آج ان کی رہائش گاہ نئی دلی میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد میں ایک ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ آجانی منموہن سنگھ کے فوت ہونے سے قوم کو زبردست صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی مستقبل کی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ آجانی وزیر اعظم کو ہمیشہ ایک دیانتدار، اقتصادی ماہر اور ایک عظیم لیڈر کے طور یاد کیا جائے گا، جنہوں نے اپنی زندگی کو اصلاحات کے لیے وقف کیا تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آجانی منموہن سنگھ وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کی کابینہ میں وزیر خزانہ تھے۔ اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ملک کو بہتر اقتصادی سمت دی تھی۔ مرکزی وزیر امت شاہ، جے پی نڈا، راجناتھ سنگھ سمیت سابقہ کانگریس صدر سونیا گاندھی، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے نے بھی آجانی وزیر اعظم کے گھر جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری اور دیگر لیڈران نے آجانی منموہن سنگھ کے فوت ہونے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ادھر جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے فوت ہونے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی سروس کے دوران ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ملک کی ترقی کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے، جس کے لیے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نائب وزیر اعلیٰ سریندر سنگھ چودھری نے بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کے فوت ہونے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہیں کئی دفعہ آجانی کے ساتھ تبادلہ خیال کا موقع ملا، جس دوران انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آجانی وزیر اعظم نہ صرف ماہر اقتصادیات تھے بلکہ ایک شریف النفس اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آجانی ڈاکٹر منموہن سنگھ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک اقتصادی ماہر ہونے کے ناطے آجانی وزیر اعظم نے ملک کے لیے اقتصادی ترقی کی راہیں کھولی، جن کی بدولت بھارت کی معیشت بلندیوں تک پہنچی۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار، کانگریس لیڈر سیف الدین سوز اور اپنی پارٹی کے لیڈران نے بھی آجانی منموہن سنگھ کے فوت ہونے پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس، کانگریس اور بی جے پی کے لیڈروں نے آجانی لیڈر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، دکھ کی خبر آج سنی جب سنا کہ ہمارے پورو پردھان منتری منموہن سنگھ جی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ بہت قابل اکانومسٹ بھی تھے اور انہوں نے بھارت کی یہ سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ بھارت کو اکٹھے رکھنے کی کوشش کی اور اکانومی کو کھول دیا۔ آج ہم $1 ٹریلین کی بات کرتے ہیں، وہ مہربانی منموہن سنگھ۔ کل رات دیش کے 2 دفعہ کے وزیر اعظم، پروفیسر، بہت بڑے اکانومسٹ، ایک ریفارمر، جنہوں نے دیش کی جی ڈی پی، دیش کی گروتھ، دیش کی ترقی کے لیے بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ جب ساری دنیا مندی کی طرف جا رہی تو ہندوستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کو بڑھانے میں انہوں نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا۔ کل ہم سے رخصت چلے گئے۔ ہم وہی گرو اللہ بھگوان سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کی روح کو شانتی دے اور ان کی فیملی کے ساتھ ساتھ دیش کو یہ نقصان برداشت کرنے کی ہمت دے۔ آج ہم سب لوگ غمزدہ ہیں، خاص کر پورا ملک اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس پارٹی آل اوور انڈیا، کہ ہم نے ایک ایسی شخصیت کھوئی آج جس نے ملک کو ترقی کی اور گامزن کیا، جس نے ملک کے اندر جب ملک کی اکانومی ختم ہو چکی تھی اور اس ٹائم وہ ایز فائنانس منسٹر انہوں نے اپنے ملک کو وہ دشا دکھائی جو ایک پوری دنیا میں اس نے ایک اپنا سکہ جو تھا وہ جمایا۔ اس ملک نے ایک ایسی مہان شخصیت کھوئی اور اس شخصیت کو ہم عمر بھر یاد کریں گے۔ ناظرین ایک بریک کے لیے رکتے ہیں، جلد لوٹیں گے۔
जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। सीपीआईएम, एनसीपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। इसके अलावा दुनिया भर के लीडरों ने आज यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के फौत होने पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के फौत होने पर दुख का इजहार करते हुए कहा है कि भारत अमेरिका ताल्लुकात को बुलंदियों तक ले जाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का रोल हमेशा याद किया जाएगा। याद रहे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात नई दिल्ली में इंतकाल हो गया था। वो 92 बरस के थे। डॉक्टर सिंह ने एम्स दिल्ली में आखिरी सांस ली। घर में अचानक बेहोश होने के बाद उन्हें तशवीशनाक हालत में शाम 8 बजे के करीब एम्स के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया था। उनके पसमानदगान में उनकी अहलिया और 3 बेटियां शामिल हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 में मुआशी इस्लाहात का मैमार समझा जाता है, जिन्होंने मुआशी लिबरलाइजेशन के दौर का आगाज किया। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत में 2 बार वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर फाइज रहे। 33 साल तक खिदमत अंजाम देने के बाद रवां साल अप्रैल में वो राज्यसभा से सुबकदोश हुए। डॉक्टर सिंह 26 सितंबर 1932 में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के सूबे पंजाब के एक गांव में पैदा हुए थे। दरियासना साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इंतकाल पर हुकूमत ने 7 दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है, जिस दौरान कौमी परचम सरनिगूं रहेगा। इस दौरान आज तयशुदा सभी सरकारी तकरीबात को मनसूख किया गया। दरियासना साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी रसूमात के लिए कल कांग्रेस हेडक्वार्टर नई दिल्ली से सुबह 9:30 बजे शमशान घाट ले जाया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आजानी लीडर की मैयत नई दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर रखी गई है ताकि लोग उन्हें खराज अकीदत पेश कर सकें। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी मैयत को कल सुबह कांग्रेस दफ्तर ले जाया जाएगा ताकि अवाम के साथ साथ पार्टी वर्कर उनको खराज अकीदत पेश कर सके। खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि श्रीनगर में अवामी शिकायत को दूर करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ये बात उन्होंने श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर श्रीनगर के पार्टी अरकान असम्बली के साथ एक मीटिंग के दौरान कही। मीटिंग में असम्बली अरकान ने श्रीनगर से मुत्तलिक अहम मसाइल पर रोशनी डाली, जिनमें पानी की कमी, बिजली का बहरान और रिहायशियों को दरपेश दीगर मुश्किलात शामिल हैं। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली को यकीन दिलाते हुए कहा कि जिला श्रीनगर में तमाम मसाइल को पूरी तौर पर हल किया जाएगा। उन्होंने बिजली और पानी की किल्लत के हवाले से अवामी शिकायत का एतराफ़ करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत उन मसाइल को हल करने के लिए सरगर्म अमल है और इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की गई है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में एक मीटिंग की सदारत करते हुए सिदरा जम्मू में दरियाए तवी के किनारे वाटर थीम पार्क की तामीर के लिए राहें तलाश करने के काम पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के आगाज में चीफ सेक्रेटरी ने दरियाए तवी के किनारे सिदरा गोल्फ कोर्स के आसपास उस अराजी के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की जिसकी महकमे ने मज़कूरा पार्क की तामीर के लिए निशानदही की है। चीफ सेक्रेटरी ने हाउसिंग डिपार्टमेंट पर जोर दिया कि वो मज़कूरा जमीन को हासिल करने से पहले महकमा जंगलात से NOC हासिल करें। वादी कश्मीर के कई इलाकों में आज बाद दोपहर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ जो अभी जारी है। बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी की इतलात हैं। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग और जिला कुलगाम से मौसूला इतलात के मुताबिक वहां पर बर्फबारी का सिलसिला दोपहर के बाद शुरू हुआ जो अभी तक जारी है। सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त को मामूल के मुताबिक चलाने के लिए इंतजामी मशीनरी पूरी तरह से मुतहरिक की गई है। उधर
श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के मुख्तलिफ मकामात जिनमें जवाहर टनल, बानिहाल वगैरह शामिल हैं में भी बर्फबारी हो रही है। मकामी इंतजामिया हालात की गहरी निगरानी कर रहे हैं और गाड़ियों की लगातार आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमले और मशीनरी को तैयारी की हालत में रखा गया है। इधर वस्ती कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला आज बाद दोपहर से जारी है। नासाजगार मौसमी हालात के बीच बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने आज एसएमसी सेंट्रल ऑफिस करण नगर श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए आने वाले यौम जमहूरिया की तकरीबात के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के आला हुकाम भी मौजूद थे। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने तमाम महकमों को हिदायत जारी की कि यौम जमहूरिया की तकरीबात को एहसन तरीके से मुनक्किद कराने के लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाए। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों को खराज अकीदत अदा करने के सिलसिले में आज गुरुद्वारा सिंह सभा आलूची बाग में बाल दिवस मनाया गया, जिस दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की कुर्बानियों को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। जिला अनंतनाग के शांगस के एक दूरदराज इलाके दिथू में आज 19 आर सेक्टर 2 की तरफ से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का मकसद मकामी लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम करना था। कैंप के दौरान तकरीबन 450 लोगों का इलाज मुआवजा किया गया, जिस दौरान उन्हें मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। मकामी लोगों ने फौज के इस इक़दाम की सराहना की है। सीआरपीएफ की 185वीं बटालियन की तरफ से आज पामपुर इलाके के वहाब सर्व, शार और लालपोरा देहात में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया, जिस दौरान 500 से ज्यादा लोगों का इलाज मुआवजा किया गया। इस मौके पर बीमारों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गईं। इस तिब्बी कैंप का इफ्तिताह बटालियन के कमांडेंट अरुण कुमार भारती ने दीगर सीआरपीएफ अफसरान की मौजूदगी में किया। जिला शुपियां में प्रोजेक्ट मिशन युवा के तहत बेस लाइन सर्वे का आगाज किया गया है, ताकि नौजवानों को रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके फराहम किए जा सके। सर्वे को कामयाब बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर शुपियां मोहम्मद सलीम डार ने अवाम से अपील की है कि वो सर्वे से मुंसलिक अफराद और इन्यूमरेटरों को रोजगार से वाबस्ता मसाइल के बारे में पूरी जानकारी फराहम करें। इस सर्वे का मकसद रोजगार से जुड़े मसाइल का डेटा इकट्ठा करना है, ताकि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार और एंटरप्रेन्योर के मौके फराहम किए जा सकें। जिला गांदरबल के वुसन इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान पूरी तरह से खाकस्तर हुआ, जबकि दूसरे मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। आग गुलाम रसूल नामी शख्स के घर से नमूदार हुई, जिसके बाद इसने आनन फानन दूसरे रिहायशी मकान को अपने लपेट में ले लिया। आग बुझाने के अमले की फौरी कार्रवाई के बाद आग को मजीद फैलने से रोका गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। आप खबरों समेत डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।